हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है एंड आई होप कि आप सबकी दिवालियाँ काफ़ी अच्छी बीती होंगी। एंड नाउ वी आर हियर विद द वीकली न्यूज़ एनालिसिस। वी कुड नॉट कंडक्ट द डीएनए बिकॉज ऑफ द दीपावली हॉलीडे, सो आफ्टर द वीक वी आर हैविंग अ consolidated video which will give you important news from 22nd October to 28th October 2022। और जैसा कि हम रोज न्यूज़पेपर के थ्रू डीएनए करते हैं, बट टुडे वी विल बी डूइंग इट थ्रू पीपीटी एंड आई विल बी कवरिंग ऑल द important न्यूज़ which have happened in past 1 week and which are important for your CLAT exam. So let's start with important news. The first important news which was there was that Rishi Sunak, he has become the Prime Minister of UK. Now he, अगर आप देखेंगे पिछले 200 सालों में he is the youngest Prime Minister and he is the first Indian origin Prime Minister of the United Kingdom. अगर आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि that who was the youngest Prime Minister of the UK United Kingdom, so he was इनका नाम है विलियम पिट द यंगर। इनका ये पूरा नाम है। He is till date the youngest Prime Minister of the United Kingdom. He became the Prime Minister of Great Britain at the age of 24 years. उसके बाद जो ऋषि सुनक है, now he is the youngest Prime Minister. तो if you will just see that before Rishi Sunak, Liz Truss or Elizabeth Truss, she was appointed as the Prime Minister of the United Kingdom, becoming the third woman Prime Minister of the United Kingdom after Thatcher and Theresa. सो यहाँ पे दीज आर सम ऑफ द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। अगर आप देखेंगे कि एलिजाबेथ ट्रस जो हैं या लिज ट्रस जिसको हम कहते हैं, उनका भी एक हिस्ट्री बन गया है कि दैट शी इज़ द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर विद द शॉर्टेस्ट टेन्योर अराउंड 45 days. Okay, and Elizabeth Truss, she was appointed as the prime minister by Queen Elizabeth few days before her death. And now Rishi Sunak, and he is appointed as the prime minister by Charles III. So Rishi Sunak के बारे में कुछ important information हम ले लेते हैं. That is that he is the first Indian origin prime minister of the United Kingdom, and earlier he has served as the Chancellor of Exchequer from 2020 to 2022. He has also served as the Chief Secretary to the Treasury from 2019 to 2020, and he is a member of Parliament of Richmond since 2015. Again, he has earlier worked for Goldman Sachs and later as a partner at the hedge fund firm, that is Children's Investment Management Fund and Theleme Partners. The next is why Liz Truss she has to resign as the Prime Minister of the United Kingdom only after 45 days. तो यहाँ पे जो चीज़ थी that was unfunded tax cuts. तो इनका जो कैबिनेट था, they announced in a short budget जिसमें एक अनफंडेड टैक्स कट था विच लेड टू वन ऑफ द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन ग्रेट ब्रिटेन एंड विच लेड टू हर रेजिग्नेशन। तो ये जो अनफंडेड टैक्स कट था, ये क्या था, इसके कुछ प्रपोजल्स थे। उसमें से 2 प्रपोजल्स ऐसे थे जो 45 बिलियन पाउंड का डेफिसिट पैदा कर रहा था, और ये डेफिसिट कहाँ से फाइनेंस किया जाएगा इसका कोई प्रपोजल नहीं था। अब ये जो 45 बिलियन पाउंड का जो डेफिसिट होने वाला था, दैट वाज बिकॉज ऑफ 2 प्रपोजल्स इन दिस बजट। दैट वाज टू एबॉलिश द 45% ऑफ इनकम टैक्स रेट फॉर इनकम मोर देन और इक्वल टू 1,50,000 पाउंड। द सेकेंड was scrapping up of planned hike in corporate tax from 19% to 25% with effect from April 2023। तो यहाँ पे देखिए, एक तो अगर आप देखेंगे कि ब्रिटेन जो है UK, it is going through its worst economic crisis. There is a cost of living crisis, then there is a energy crisis due to approaching winter. तो यहाँ पे ऐसे माहौल में बजट अनाउंस किया गया। ये भी था उसमें टू कैप द प्राइसेस ऑफ एनर्जी। ठीक है, दीज आर सम ऑफ द प्रपोजल्स, बट 2 प्रपोजल्स ओके विच वाज अनपॉपुलर वाज दिस 2। कि पहला कि जो इनकम टैक्स रेट, जो एडिशनल इनकम टैक्स रेट होता है, जो 1,50,000 पाउंड से ज़्यादा अर्न करते हैं, उनके ऊपर एक है 45% का इनकम टैक्स रेट, तो उसको एबॉलिश किया गया। और द सेकेंड वाज कि कॉर्पोरेट टैक्स ग्रेट ब्रिटेन में बढ़ने वाला था फ्रॉम 19% टू 25% विद इफेक्ट फ्रॉम अप्रैल 2023, तो इसको स्क्रैप कर दिया गया। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अनफंडेड टैक्स कट विच वॉज अनाउंस्ड बाय लिज ट्रस गवर्नमेंट एंड विच लेड टू हर रेजिग्नेशन। द नेक्स्ट इज while doing this thing about the UK
appointment of prime minister, one committee has come in the news which is very important, that is 1922 committee. अभी जो 1922 कमेटी है ये कंजर्वेटिव पार्टी की कमेटी है। अगर आप देखेंगे यूके में जो मेजर पार्टीज हम देखते हैं यूके में, तो एक होता है कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरा होता है लेबर पार्टी। तो ये जो 922 कमेटी है इट इज़ रिलेटेड विद कंजर्वेटिव पार्टी। तो जो कंजर्वेटिव पार्टी की जो कमेटी है दीज आर प्राइवेट मेंबर्स। प्राइवेट मेंबर्स का मतलब वो मेंबर्स जो गवर्नमेंट में पार्ट नहीं होते, मीन्स दे आर एमपीज but they are not members or ministers in government, so they are not members of government। ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, प्राइवेट मेंबर्स। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में भी ये सिस्टम है दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस दैट इज लोकसभा। तो वैसा सेम हमने भी वही मॉडल जो है वो ब्रिटिश से वेस्टमिनिस्टर मॉडल कहते हैं, जो हमने ब्रिटेन से अडॉप्ट किया है कि दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द लोअर हाउस। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में वो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो हैं बट दे आर नॉट इन द पार्ट, दे आर नॉट द मेंबर्स ऑफ गवर्नमेंट, उनका एक कमेटी होता है दैट इज कॉल्ड एज कंजर्वेटिव पार्टी मेंबर, कंजर्वेटिव प्राइवेट मेंबर्स कमेटी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। इसको हम 1922 कमेटी कहते हैं। नाउ व्हाई वी कॉल इट एज 1922 कमेटी, तो इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है बिकॉज इट वाज फॉर्म्ड इन 1923 बाय द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हु वर इलेक्टेड इन 1922। अब इन मेंबर्स का इंपॉर्टेंस उस वक्त काफ़ी बढ़ जाता है जब कोई नया लीडर अपॉइंट होना हो कंजर्वेटिव पार्टी का। सो दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग द लीडर ऑफ द कांग्रेस पार्टी। तो जब लिज ट्रस रिजाइन कर रही थी तो उन्होंने रेजिग्नेशन से पहले जो चेयरमैन है 1922 कमेटी के सर ग्राहम बार्डी, इनसे वो मिली थी। ठीक है, सो आफ्टर दैट शी रिजाइन। तो यहाँ पे जब नया लीडर अपॉइंट होना था दैट इज ऋषि सुनाक, तो 1922 कमेटी इट प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो दे प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन चूजिंग द लीडर ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी। तो अभी जो लीडर हैं कंजर्वेटिव पार्टी के वो कौन हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे ऋषि सुनाक, एंड दे रिप्रेजेंट द व्यूज ऑफ द कंजर्वेटिव पार्टी टू द पार्टी लीडर। तो जो पार्टी लीडर होते हैं जैसे कि अभी इस वक्त ऋषि सुनाक इज द पार्टी लीडर, ठीक है, और एक हो गया कंजर्वेटिव पार्टी। ठीक, तो इनके बीच का जो लिंक होता है, ठीक है ना, दैट इज द लिंक इज 1922 कमेटी। ठीक है, अब जो इंक्यूबेंट चेयरमैन है 1922 कमेटी के ही इज सर ग्राहम बार्डी। अब हम बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इज इसरो लॉन्चेस 36 OneWeb सैटेलाइट्स। तो इसरो का एक मिशन है, उस मिशन का नाम है LVM-3M2 मिशन। ओके, सो इट वाज अ डेडिकेटेड कमर्शियल मिशन फॉर अ फॉरेन कस्टमर OneWeb विच इज़ अ UK बेस्ड कंपनी। तो ये जो मिशन है इट वाज एग्जीक्यूटेड थ्रू NSIL दैट इज न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड विच इज़ द कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। So it was the first multi-satellite mission with 36 OneWeb satellites to the LEO. LEO मतलब low Earth orbit. Okay, low Earth orbit. अब 36 satellites launch करने थे, तो जो payload था that was very high, that is 5,796 kg, and that was executed using LVM-3, which is the one of the heaviest vehicle, जिसको हम GSLV Mark 3 भी कहते हैं। Now what was the salient features of this launch? So it was the first commercial mission of LVM-3। अगर आप देखेंगे तो LVM-3 जो लॉन्च व्हीकल है इसका ये 5th फ्लाइट था, बट इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल मिशन ऑफ LVM-3। द सेकेंड इज दैट इट वाज द फर्स्ट मल्टी सैटेलाइट मिशन विद 36 OneWeb सैटेलाइट्स ऑन बोर्ड। इट वाज फर्स्ट लॉन्च ऑफ LVM-3 टू LEO, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट। सो व्हाट इज दिस लो अर्थ ऑर्बिट? तो अगर आप देखेंगे कि दैट वी हैव अर्थ, तो अर्थ के अराउंड देयर आर डिफरेंट ऑर्बिट्स, ठीक है ना। तो जो सबसे नियरेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड एज लो अर्थ ऑर्बिट, ठीक है ना। उसके बाद वी हैव मीडियम अर्थ ऑर्बिट एंड देन वी हैव जियोसेंट्रिक अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो लियो अर्थ ऑर्बिट, मियो एंड जियो। तो दिस लॉन्च वाज इन लियो दैट इज अप टू द एल्टीट्यूड ऑफ 2000 किलोमीटर, ठीक है। The next is it was the first Indian rocket which had the 6-ton payload, and it was the first NSIL mission with LVM-3, and it was first OneWeb mission with NSIL or DOS, that is Department of Space. So these are the salient features of this launch. अब हम आते हैं ये OneWeb constellation क्या होता है।
सो वन वेब कॉन्स्टलेशन है, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल 588 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने का पूरा प्रोग्राम है। दैट इज ऑल्सो इन लियो पोलार ऑर्बिट, दैट इज लो अर्थ ऑर्बिट पोलार ऑर्बिट। पोलार ऑर्बिट का मतलब गोइंग फ्रॉम पोल टू पोल, ठीक है ना। तो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। पोलार ऑर्बिट का मतलब इट विल गो थ्रू पोल टू पोल in low Earth orbit. So OneWeb constellation, it operates in LEO polar orbit, and satellites, they are arranged in 12 rings and each rings contains 49 satellites. Now ये जो orbital planes है, these are inclined to near polar. Near polar मतलब कि देखिए 87.9 डिग्री का इसका inclination है, means it almost crosses the polar area. Then these orbital planes, they are 1200 किलोमीटर above the earth. It means that they are in low earth orbit. Low earth orbit का जो range है वो हम up to 2000 किलोमीटर मानते हैं. So now here if we will see that they are to be launched in 1200 kilometer orbit above the earth with the inclination of 87.9 degree. Now each satellite, it completes a full trip around the earth every 109 minutes. ठीक है। एंड इन फुल सर्विस ईच प्लेन विल हैव 49 सैटेलाइट्स, और हमारे पास ऐसे 12 प्लेन्स हैं या 12 रिंग्स हैं, ठीक है ना। सो दैट अमाउंट्स टू 588 सैटेलाइट्स व्हिच हैज टू बी पुट in the low earth orbit for OneWeb constellation for satellite communication. The next is 20th Chinese Communist Party Congress जो recently held हुआ था. So this is very important from the exam point of view. तो इसके जो important highlights हैं, these are that Xi Jinping, who is aged 69 years now, he has started his third 5-year term. इसके पहले जितने भी चाइनीज प्रेसिडेंट होते थे उनको 2 ईयर टर्म ही मिलता था, 2 ईयर टर्म. But 2018 में Xi Jinping first he abolished the presidential 2-term limit in 2018, okay, and then he declared himself as the paramount leader of China. Now since Xi Jinping is the paramount leader of China, so he is holding 3 top positions in the party. Okay, fine. So first is he is the president of China, okay, that we already know. Second is that he is a general secretary to the Communist Party of China, and he's chairman of the Central Military Commission of China. Okay, तो 3 टॉप पोजीशंस में से जो ए भी है, जो सी होगा वो क्या होगा, दैट ही इज अ प्रेसिडेंट ऑफ चाइना. नाउ एक आपने पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के बारे में पढ़ा होगा. तो चाइना में पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में टोटल 7 मेंबर होते हैं, ठीक है ना. जी जिनपिंग को लेके टोटल 7 मेंबर्स. ठीक, अब ये कहा जा रहा है कि पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी में जितने भी जी जिनपिंग के नज़दीक के पार्टी होल्डर्स हैं, party members हैं, now they all have been appointed to the Politburo Standing Committee, which is the highest decision making body in China. तो इसमें कौन कौन है? So if you will see, Xi Jinping, Zhao Lezi, Wang Huning, Li Qiang, Kai Qi, Li Ji, Deng Zhuoxiang. So these are the 7 members of Politburo Standing Committee, which is a very important body in China because it is the highest decision making body. अगर आप देखेंगे कि Politburo Standing Committee के मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, तो देखिए पहले क्या होता है कि सबसे पहले क्या हुआ कि 2300 डेलीगेट्स दे गैदर्ड एट द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल इन तियाननमेन स्क्वायर, जहाँ पे 20th कम्युनिस्ट पार्टी का कांग्रेस चल रहा था. उसमें से 200 डेलीगेट्स वेर टू बी इलेक्टेड टू जॉइन द सेंट्रल कमिटी एंड 170 डेलीगेट्स वर सिलेक्टेड एज द अल्टरनेट मेंबर. किसमें से? ये 2300 में से. तो इट गोज लाइक दिस. इस 2300 में से, ठीक है ना, 200 मेंबर पहले इलेक्ट होंगे, ओके, एज द सेंट्रल कमिटी मेंबर्स. ठीक, फाइन. और इसी में से 170 दे विल बी ऑल्टरनेट मेंबर्स ऑफ दिस सेंट्रल कमिटी. दे विल बी ऑल्टरनेट मेंबर्स. फाइन. अब इस 200 मेंबर्स क्या करते हैं? दे इलेक्ट 25 मेंबर्स टू पॉलिट ब्यूरो. ये 200 मेंबर्स मिलके पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, पॉलिट ब्यूरो को, ठीक है ना. तो पॉलिट ब्यूरो में टोटल कितने मेंबर्स हो गए? 25. अब ये 25 मेंबर्स इलेक्ट करते हैं 7 मेंबर्स, ओके. दिस 7 मेंबर्स आर द मेंबर्स ऑफ पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी. पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमिटी, ठीक है, जिनके बारे में हमने भी लास्ट स्लाइड में पढ़ा है, विच इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ चाइना.
द नेक्स्ट न्यूज इज दैट BCCI टेक्स फर्स्ट स्टेप्स टुवर्ड्स जेंडर इक्वलिटी। ये आज के न्यूज़पेपर में है, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। दैट इज द बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, दे हैज़ रेज्ड द मैच फीस, मतलब वुमेन इंटरनेशनल प्लेयर्स जो मैच खेलते हैं उनका फीस कितना होता है। तो पहले वो मैन के कंपैरिजन में काफ़ी कम था, अब उसको मैन जितना पाते हैं, मैन क्रिकेट टीम में जितना मिलता है उतना ही अब वुमेन को भी मिलेगा। सो इफ़ यू विल जस्ट सी द फीस, सो फॉर टेस्ट मैचेस इट इज़ ₹15 lakhs, फॉर ODIs it is ₹6 lakh, and for T20 इंटरनेशनल it is ₹3 lakhs। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो 3 टाइम ऑन एन एवरेज ये 3 टाइम इंक्रीज है, ठीक है ना। और अगर आप टेस्ट मैच का देखोगे तो 6 टाइम इंक्रीज है। उसके बाद सम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन अबाउट BCCI। सो BCCI के प्रेसिडेंट ही इज़ रॉजर बिन्नी, BCCI सेक्रेटरी जय शाह, एंड वेयर इज द BCCI हेडक्वार्टर, इट इज़ इन वानखेड़े स्टेडियम इन मुंबई। प्लीज राइट मी इन द कमेंट बॉक्स वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। अब हम क्विक फैक्ट्स की तरफ चलेंगे, ठीक है। दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट विल बी सेटअप एट, तो ये आज के न्यूज़पेपर का न्यूज़ है। दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फॉर C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, इट विल बी सेटअप एट वडोदरा in Gujarat. So manufacturing facility will come for C295 transport aircraft, okay, in Vadodara. It will be inaugurated by our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. This manufacturing facility, okay, it is to be set up by Tata Advanced System Limited in partnership with European aviation major Airbus, ठीक है ना। तो Airbus और TASL वो कोलाबोरेशन में इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। उसमें से अगर आप देखेंगे तो एक डील हुआ था C295 का एयरबस के साथ, जिसमें से टोटल 56 इंडिया विल एक्वायर 56 C295 एयरक्राफ्ट, ओके, और जिसमें से 40 विल बी बिल्ट एट दिस फैसिलिटी। इसका मतलब कि 16 तो सीधा एयरबस से ले लिए जाएंगे, ठीक, सीधा 16 एयरबस से लिए जाएंगे, और जो 40 है वो हम इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करेंगे। वी विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। नाउ आपने इस वीक से पहले आपने पढ़ा होगा डिफेंस एग्जीबिशन विच वाज हेल्ड इन गांधीनगर। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे दैट इट इज़ रिलेटेड विद द गोल विच इंडिया हैज सेट फॉर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इंडिया का गोल है कि 2025 तक 2 गोल रखा है इंडिया ने। पहला तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी होगी इंडिया की, ठीक है ना, और एक्सपोर्ट कितना होगा, डिफेंस एक्सपोर्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी दैट टारगेट इज $25 बिलियन, और एक्सपोर्ट बाय 2025 इट विल बी $5 बिलियन। सो दिस टारगेट, ये जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यहाँ पे बिल्ट होने वाला है, ये इसी टारगेट की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, कि हमको डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को इंडिया में बढ़ाना है, ठीक है। तो हमने पढ़ाई था अबाउट, हमने DNA में किया था द 12th एडिशन ऑफ डिफेंस एक्सपो वॉज हेल्ड इन गांधीनगर। तो जो डिफेंस एक्सपो 2022, so it was held in गांधीनगर, ठीक है ना। और इसके 2 मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी। पहला तो था इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, द सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग, एंड द सेकेंड वाज इंडियन ओशन रीजन प्लस, ओके। सो दीज आर द 2 रीजन्स वेयर इंडिया इज गोइंग टू फोकस। तो ये इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग का सेकेंड एडिशन था। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, दैट इज गांधीनगर डिक्लेरेशन, ठीक है। तो ये गांधीनगर डिक्लेरेशन में क्या है, दैट ईयर इंडियन एंड अफ्रीकन कंट्रीज दे विल पार्टिसिपेट, दे विल कैरी आउट डिफेंस एक्सरसाइज, कैपेसिटी बिल्डिंग, ओके, एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज अगेन अबाउट द C295 aircraft. So this is an aircraft with 5 to 10 ton capacity used for tactical transport of up to 71 passengers or 50 paratroopers, okay. Then again it will be used for logistic operations to locations that are not accessible to heavier aircraft, fine. And then it can operate from short or unprepared airstrips, and it is going to replace the Avro aircraft which is currently in use by Indian Air Force. The next news is that recently which cyclonic storm has hit Bangladesh? So the answer is Sitrang, cyclone Sitrang. So cyclone Sitrang, it has hit the Bangladesh and accompanied with heavy rains and flooding the coastal area. एलेट में बहुत बार ये पूछा जाता है कि जो साइक्लोन्स होते हैं उसका नाम किसने दिया है।
तो जो नेम जो है चित्रंग का इट हैज़ बीन गिवन बाय थाईलैंड, ठीक है ना। तो अगर आप देखेंगे कि जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है 13 कंट्रीज जो हैं वो नाम सबमिट करती हैं आईएमडी को, ठीक है ना। और आईएमडी जो इंडियन ओशियन बेसिन में जितने भी साइक्लोन्स होंगे, ठीक है, इंडियन ओशियन बेसिन में तो जितने भी कंट्रीज ने नाम सजेस्ट किया है तो इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर उन साइक्लोन्स के नाम दिए जाते हैं। तो ये जो साइक्लोन का जो नाम दिया गया है चित्रंग, दैट नेम वाज गिवन बाय थाईलैंड। उसके बाद देयर वर सर्टेन हरिकेन एंड टाइफून्स व्हिच वर इन न्यूज़ व्हिच कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम, दैट इज हरिकेन इयान, so it had hit Florida and Cuba, and then there was Typhoon Hinnamor which hit Japan. The next news is that recently which country was removed from the grey list of FATF? So the answer is Pakistan. So Pakistan was recently removed from the grey list of the Financial Action Task Force October 2022 plenary. ये जो FATF plenary होता है ना, FATF plenary, it is the highest decision making body of FATF. Okay, it is held 3 times in a year. तो अगर आप जैसे देखेंगे तो अक्टूबर, फरवरी एंड जून. Now so Pakistan it was put in the grey list earlier, ठीक है ना, in 2018. grey list को हम क्या कहते हैं, jurisdictions under increased monitoring. उसके बाद FATF का एक और लिस्ट होता है, that is called as black list. It is also known as high risk jurisdiction. अच्छा, अब इंडिया का और FATF का अगर हम देखें तो इंडिया ज्वाइन दी FATF विद ऑब्जर्वर स्टेटस इन 2006 एंड लेटर इट बिकेम द मेंबर ऑफ FATF इन 2010, ठीक है। FATF जो है इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1989 और इसका जो हेडक्वार्टर है इट शेयर्स द हेडक्वार्टर विद OECD विच इज इन पेरिस, ठीक है ना। टोटल जो मेंबर्स हैं FATF के वो 39 मेंबर्स हैं और इसमें 39 मेंबर्स में अगर आप देखेंगे तो दो रीजनल फोरम्स हैं इसमें, ठीक है ना। 37 कंट्रीज हो गए, 2 रीजनल फोरम्स है। 2 रीजनल फोरम्स कौन कौन से हैं, एक तो यूरोपियन यूनियन एंड द नेक्स्ट इज गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल. These are the 2 regional members of FATF. Then who is the current president of FATF? That is T. Raja Kumar, who is from Singapore. The next news is that the UNSC Counter Terrorism Committee is कहाँ पे रखा जाएगा, तो this will be held in Mumbai. So the United Nations Security Council's Counter Terrorism Committee meeting will be held in Mumbai and the UNCTC में इसमें there are 15 members of the Security Council, ठीक है ना। 15 members में से 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स हो गए और 5 परमानेंट मेंबर्स हो गए. And this was established by resolution number 1373 on 28 September 2001 under chapter 7 of the United Nations Charter, which is related with international peace and security. Okay, so in August 2022 India was appointed to chair the United Nations Counter Terrorism Committee. तो यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट कौन करता है इस काउंटर टेररिज्म कमिटी में, दैट इज रुचिका कंबोज. Now who is Ruchika Kamboj? Ruchika Kamboj, she is the United Nations Permanent Representative from India. The next is Project Wave. It has been launched by which bank? So if you will just see Project Wave, it has been launched by Indian Bank. So Indian Bank has launched the Project Wave for enhancing customer experience through its digital platform, and it was launched by the Indian Bank MD and CEO Sri S.L. Jain. The next news is that which GM crop has been approved for the commercial cultivation in India recently, that is GM mustard. यहाँ पे GM का मतलब होता है genetically modified crops. Okay, it is called as genetically modified crops. तो ये जो अप्रूवल है ये एक बार पहले भी दिया गया था 2017 में, बट जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी जो अप्रूवल देती है उसको कहा था कि आप इसको एक बार फिर से स्टडी करो. सो नाउ अगेन आफ्टर स्टडिंग, नाउ अगेन द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी इट हैज़ अप्रूव्ड द कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ GM मस्टर्ड इन इंडिया. अब ये जो GEAC है इट फंक्शंस अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और इसके जो मिनिस्टर हैं वो हैं भूपेंद्र यादव. ओके, नाउ इंडिया में अभी तक कितने GM क्रॉप को का कमर्शियल कल्टीवेशन अलाउड है? तो ओनली वन क्रॉप, दैट इज BT कॉटन. सो BT कॉटन इट इज द ओनली जेनेटिकली मॉडिफाइड GM क्रॉप that has been approved for commercial cultivation in 2002 by the government of India.
इसमें बीटी जो होता है, बीटी कॉटन हम कहते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बीटी? सो बीटी स्टैंड्स फॉर बैक्टीरियस thuringiensis. So it is a soil bacteria which is pest resistant and toxic to some insects. मतलब कि क्या, जैसे कि इसका फंक्शन ऐसे होगा, जैसे कॉटन को कुछ इंसेक्ट्स अगर ऐसे हैं जो हार्म करते हैं, तो कॉटन में ये बीटी डाल दो, बैक्टीरिया डाल दो, ठीक है ना. तो इट बिकम्स जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन विच कैन रेजिस्ट दिस पेस्ट अटैक्स. The next is certain persons who were in news. So James Cleverly, he was in news. He is the Foreign Secretary of the United Kingdom. Then the next is late Ash Carter. So he was former Defense Secretary of the United States, and during his tenure, some important decisions were taken. For example, opening the combat jobs to women and ending a ban on transgender persons from serving in the military. The next is Harmanpreet Singh. He has been appointed as the Indian hockey team captain. The next is Karman Kaur Thandi. So she has won $60,000 ITF Women's Tennis Tournament in Saguenay in Canada. The next is Aman Sherawat. So he is the first Indian wrestler to win the World Under 23 Wrestling Championship held in Pontevedra in Spain. He defeated Ahmed Duman of Turkey in 57 kg freestyle wrestling. So friends, that's all from the important weekly news which we have discussed. Okay, so you are advised to make notes from it, which will, because these news are important from the exam point of view. From tomorrow we will meet with our regular DNA with newspaper. Till then, have a nice day. Thank you and take care.